Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. Friends, I welcome you all for the SY Basic Chemistry Paper 3 Unit 2 Classical Method of Analysis. So friends, in our last lecture we have discussed about the importance of precipitation in gravimetry, and we have also discussed how the process of precipitation actually takes place. Okay. So the very first stage is called as nucleation. Okay. So in nucleation there are two type of things can happen. One is heterogeneous nucleation and the other one is homogeneous nucleation. So in heterogeneous nucleation, on any heterogeneous particle, that is it can be a dust particle on which there is formation of crystal take place. Okay. And slowly there will be layer on layer, primary layer, secondary layer, and then what will happen, slowly there will be increase in size of that particle and precipitation will take place. In case of homogeneous particle, there is no need of any foreign particle like dust particle. Directly the crystal will form because of the positive and negative ions in the solution itself, and then on that there will be formation of layer. So in that case we have also seen that initially there is an ion on which there will be positive or negative layer, and finally there will be secondary layer. So this way there is formation of the particle of precipitate. So slowly that size will increase and finally a crystalline precipitate will form. So this is all about how the crystal forms or how the particle of precipitate is formed. Today we will discuss about the impurities that are present in analytical precipitate. Okay. So we all know that when we want good quality of precipitate, what we want 100% precipitation. Okay. There should not be any component left over in the solution. कोई भी solution के अंदर अपना required component नहीं होना चाहिए. Whatever precipitating agent we will add, completely it should precipitate the required component and finally it will get into precipitate. So we have also discussed about how the precipitation take place, and now today we will discuss what are the impurities present during the precipitation process. So if we know what are the impurities present, then slowly we can take care that this type of impurities will not happen and our precipitate will be completely pure and in a required format. Okay. So what happens actually, once the precipitate is formed, it has to be treated as a contaminated one, because whenever you complete the process of precipitation, there is chance that always there is some contamination with the impurities, and that contamination of precipitate is due to many reasons. Okay, whenever we perform any experiment, we all know that always there can be presence of impurities. So an impurity is the one which is insoluble in the solution under the condition at which precipitation is carried out. मतलब क्या होता है कि when you want to carry out the precipitation, required component के साथ किसी और चीज़ का भी precipitation हो जाता है ना. तो ये कोई अदर चीज़ क्या है, दे आर सम आयन्स ओनली. मतलब आप किसी पर्टिकुलर आयन का प्रेसिपिटेशन कर रहे हो, जैसे यू वांट टू प्रेसिपिटेट बेरियम आयन, लेकिन अगर उसके साथ कोई लीड आयन प्रेजेंट है Pb, तो उनका भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बिकॉज दीज ऑल आर इन अ सेम ग्रुप कंपोनेंट. वो जो सारे एलिमेंट्स है एक ही ग्रुप में मिलते, they have similar properties, and therefore with the required component these different type of component also get precipitated. So this is called as impurity. Impurity मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से अलग उसमें आके गिरने वाला है, लेकिन whenever we form the solution, उनके साथ required आयन के साथ दूसरे भी आयन present होते. तो when you add any precipitating agent along with required one, दूसरे भी कंपोनेंट या आयन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज इम्प्योरिटी. सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड, व्हेन यू वांट सिल्वर आयन्स टू गेट प्रेसिपिटेटेड एज सिल्वर क्लोराइड, along with silver there can be presence of
द कंटामिनेटेड आयंस ऑफ ब्रोमाइड। तो क्लोराइड के साथ ब्रोमाइड प्रेजेंट हो सकता है, तो जितना आपके पास AgCl बनेगा कुछ अमाउंट में AgBr भी बन जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटीज। ओके, सो मेनली दीज इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज को प्रेसिपिटेशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। सो को प्रेसिपिटेशन और we can say CPT, co-precipitation, is the carrying down by precipitate of substance normally soluble under the condition employed। इसका मीनिंग क्या है कि आप जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसके अंडर दूसरे आयन भी उसके साथ साथ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। सो इट इज़ द फिनोमेना इन विच द इम्प्योरिटी इज नॉर्मली सॉल्युबल and it is precipitated along with the main component. Okay, so even your solution is not completely saturated, then also co-precipitation will take place. So in gravimetric analysis we can say the example of addition of barium chloride, okay, to the solution of sodium sulfate forms precipitate of barium sulfate। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या था, वी आर एडिंग बेरियम क्लोराइड टू द सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड हियर व्हाट वी वांट, अगर बेरियम क्लोराइड के साथ आप सोडियम सल्फेट ऐड कर रहे हो तो आपको रिक्वायर्ड प्रेसिपिटेट क्या चाहिए, बेरियम सल्फेट, राइट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट एंड वी वांट रिक्वायर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, लेकिन उसके साथ साथ सोडियम सल्फेट भी बन जाता है ना, तो that is called as co-precipitation. So in gravimetric analysis, which consists on precipitating the analyte and measuring its mass to determine its concentration or purity, co-precipitation is a problem because undesired impurities often co-precipitate with the analyte resulting in excess mass। तो ये जो co-precipitation है, एक के साथ दूसरे का भी precipitation हो जाना, ये इतना डेंजरस क्यों है, वाई वी आर कंसिडरिंग इट सो सीरियसली, बिकॉज इन ग्रेविमेट्री मास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे वॉल्यूमेट्रिक में हम लोग एग्जैक्ट एंड पॉइंट निकालते हैं, कैसे निकालते कि मानो आपका ब्यूरेट रीडिंग है 6.3, तो टीचर आपको बोलेगा कि 6.4 भी नहीं होना चाहिए, 6.2 भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एग्जैक्ट रीडिंग। ओके, सो दैट इज़ एक्यूरेसी इन वॉल्यूम। सिमिलरली इन केस ऑफ ग्रेविमेट्री द मास या फिर जो वेट है, वेट ऑफ रिक्वायर्ड प्रेसिपिटेट इज़ वेड एक्यूरेटली। तो अगर उसके साथ ऐसा को प्रेसिपिटेशन हो जाता है किसी और आयन का प्रेसिपिटेट, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो रिक्वायर वेट है दैट विल इंक्रीज, राइट। मतलब जहाँ पे आपको 1 ग्राम प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए था, वहाँ पे आपको 1.23 ऐसे कुछ तो प्रेसिपिटेट का वेट मिलेगा। दैट मीन्स देयर इज़ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। और ग्रेविमेट्रिक में इम्प्योरिटी is no good at all, because if the mass or weight changes, that means your total experiment changes and results changes, and therefore that co-precipitation is not acceptable. The co-precipitation is mainly due to surface phenomena, that is adsorption or occlusion and mechanical वो जो उसका जो होगा उसके साथ, उसके वजह से co-precipitation हो जाता है। मतलब अगर सॉल्यूशन के अंदर कोई और आयन प्रेजेंट है तो उनके ऊपर प्रेसिपिटेट के आयन जम जाएंगे और उसका भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। सो दिस कॉन्टामिनेशन इज ड्यू टू सरफेस एब्जॉर्प्शन एंड इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ जिलेटेनियस एंड कोलाइडल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, तो दिस टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन इज लेस ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। तो इसका सीधा मीनिंग क्या है कि अगर आपका प्रेसिपिटेट अच्छी क्वालिटी का है, क्रिस्टलाइन है, उसके पार्टिकल बड़े बड़े हैं, वेरी बिग साइज ऑफ पार्टिकल, देन देर इज़ लेस चांस ऑफ को प्रेसिपिटेशन। और अगर आपके प्रेसिपिटेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इट इज़ जिलेटेनियस और कर्डी टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट, तो उसके साथ को प्रेसिपिटेशन का होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। सो व्हाट इज़ आवर ड्यूटी, वी शुड हैव गुड टाइप ऑफ और गुड साइज ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। तो एक्चुअली क्या होता है कि
whenever you want to form good type of precipitate, you should have crystalline type of precipitate. तो एक तो हम लोगों ने देखा कि either it can be adsorption type और second one उसमें occlusion हो सकता है. So occlusion is a type of co-precipitation in which an impurity is trapped within some pocket area of the crystal growth. Okay, तो sometime क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, प्रेसिपिटेशन बनाते हो, तो उसके साथ ऑक्लूजन हो सकता है. तो ऑक्लूजन क्या होता है, को प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस विद द इम्प्यूरिटी पॉकेट के अंदर आ जाना. मतलब जो क्रिस्टल्स है या फिर उसके अंदर जो आयन है उनके अंदर वॉइड होता है. वॉइड मतलब क्या, कैविटी. तो दैट कैविटी इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉकेट, राइट. और उस पॉकेट के अंदर कुछ और आयन आके बैठ जाते हैं. हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि NaCl सॉल्ट वाटर में कैसे डिज़ोल्व होता है, राइट. सो हाउ इट गेट डिज़ोल्व इन वाटर, कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है H2O उसके अंदर क्या है, वॉइड्स. वॉइड्स मतलब कैविटी. कैविटी मतलब यू कैन से पॉकेट्स. तो उस पॉकेट्स के अंदर क्या जाएगा, NaCl का आयन, है ना. तो उसी तरह से व्हेन एक्चुअल प्रेसिपिटेशन इज टेकिंग प्लेस, आयन के अंदर या फिर प्रेसिपिटेट के अंदर जो वॉइड्स है उसके अंदर दूसरे आयन प्रेजेंट होते हैं और उसका भी प्रेसिपिटेशन हो जाता है. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन. ओके, सो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you should make sure that your quality of precipitate should be good. So this problem of co-precipitation can often occur during digestion process. Digestion process हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है, when you prepare your precipitate, in that same solution you have to heat in a water bath. मतलब जिस बीकर में आपका solution था उसी बीकर में आप लोगों ने precipitating agent ऐड किया and slowly there is formation of precipitate. So along with that solution you have to heat that in a water bath. तो जैसे ही आप वाटर बाथ में उसको हीट करते हो, what will happen, this process is called as digestion. So during digestion process actually co-precipitation take place. लेकिन अगर आप वो digestion process अच्छे से करते हो तो what will happen, this precipitate is heated to equilibrium stage and form large and pure particles. So what will happen, by dissolving the sample and reprecipitating it, you can solve this problem. Again, occlusion is a type of co-precipitation in which an impurity is trapped during the process of rapid crystal growth. मतलब एक तो co-precipitation या फिर ऑक्लूजन. इस तरीके के दो टाइप से क्या हो सकता है, को प्रेसिपिटेशन हो सकता है. सो व्हाट इज़ द एग्जांपल, Pb2+ आयंस इन बेरियम सल्फेट. मतलब आपको सॉल्यूशन या फिर प्रेसिपिटेट किस चीज़ का चाहिए, बेरियम सल्फेट. लेकिन बेरियम के साथ अगर लीड प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ लीड सल्फेट ऑल्सो. तो बेरियम सल्फेट के साथ लीड सल्फेट, दिस टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस. ओके, और फिर दूसरा एग्जाम्पल है सल्फेट आयंस इन बेरियम क्रोमेट. सो यू वांट एक्चुअली बेरियम क्रोमेट का प्रेसिपिटेट, लेकिन क्रोमेट के साथ अगर कुछ सल्फेट आयन भी प्रेजेंट है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट. सो दिस इज कॉल्ड एज को प्रेसिपिटेशन. मीन्स व्हाट, सिंपल लैंग्वेज, जो प्रेसिपिटेट हमें चाहिए, जिस कंपोनेंट का चाहिए उसके साथ कोई और भी प्रेसिपिटेट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज को प्रेसिपिटेशन. ओके, सो सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज पोस्ट प्रेसिपिटेशन. तो अभी ये पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या है, इन केस ऑफ पोस्ट प्रेसिपिटेशन इट इज द प्रेसिपिटेशन दैट ऑकर्स एज अ लेयर अपॉन द ऑलरेडी फॉर्म द प्रेसिपिटेट आयन. तो जो प्रेसिपिटेट आपका बन चुका है उसके ऊपर और लेयर फॉर्म होने लगता है ना. सो दिस इज एक्चुअली सरफेस बेस्ड कंटामिनेशन और इम्प्यूरिटी that occur due to high primary adsorption और super saturated solution. मतलब क्या होता है कि precipitation of an impurity जो होती है वो उसके ऊपर और एक लेयर बना देती है and this type of layer formation is called as post precipitation.
तो यहाँ पे क्या होता है कि द प्राइमरी प्रेसिपिटेट एक्चुअली बिकम्स द न्यूक्लियस फॉर द पोस्ट प्रेसिपिटेशन। मतलब हम लोगों ने जो न्यूक्लिएशन स्टडी किया था, हमारा जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है दैट इज़ एक्चुअली बिकम्स न्यूक्लियस फॉर द सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट। तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ कि को प्रेसिपिटेशन में दूसरे आयन भी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, रिक्वायर्ड जो हमारी प्रेसिपिटेट बन चुकी है उसके ऊपर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड करने के वजह से और लेयर फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट प्रेसिपिटेशन। So post precipitation is the precipitation of a second often related substance upon the surface of an initial precipitate। मतलब क्या होता है, we can consider the example during precipitation of calcium oxalate। हम लोगों को क्या चाहिए, कौन सी precipitate बनानी है, calcium oxalate, but in presence of magnesium the solution becomes supersaturated with to magnesium which precipitate on the particle of calcium oxalate। मगर कैल्शियम ऑक्जेलेट के अलावा अगर उसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, बिकॉज मैग्नीशियम कैल्शियम ऑल आर इन सेम ग्रुप, राइट। तो जहाँ जहाँ कैल्शियम प्रेजेंट है वहाँ कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होगा, एंड देयरफॉर along with calcium oxalate on the surface of calcium oxalate there will be layer of magnesium oxalate also। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो एक्स्ट्रा बड़े हो जाएंगे, राइट। मतलब जो रिक्वायर्ड पार्टिकल्स है जितने, उनसे भी ज़्यादा उनकी साइज़ बढ़ेगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ विल फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑन द सरफेस ऑफ आवर रिक्वायर्ड प्रेसिपिटेट। सो दीज आर एक्चुअली टू टाइप ऑफ contamination, co-precipitation and post-precipitation। So this type of contamination are removed using following steps। तो प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री में हम जो आगे के स्टेप्स करने वाले वो क्यों करने हैं हमें, एक्चुअली टू रिमूव दिस कंटामिनेशन। ये जो को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता है उन्हें रिमूव करने के लिए हम आगे के स्टेप्स करते हैं, राइट। सो आई होप यू रिमेंबर द फर्दर स्टेप्स। ग्रेविमेट्री में सबसे पहली स्टेज कौन सी थी, प्रेसिपिटेशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि to remove this type of contamination following steps are performed। they are digestion, filtration, washing and ignition of the precipitate। मतलब सिर्फ प्रेसिपिटेट बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसके साथ ये आगे के ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी है, so that you should get a good quality of precipitate। okay, so what is the role of digestion that we will see now। these all steps are very important, so we will see their importance वन बाय वन। ओके, सो पहली स्टेप तो हम लोगों ने पूरा डिटेल में देख लिया, दैट इज प्रेसिपिटेशन। द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ओके, सो डाइजेशन और precipitate aging happens when a freshly formed precipitate is left usually at a higher temperature in the solution from which it precipitates। इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है कि आपका जो सॉल्यूशन था, इनिशियल सॉल्यूशन जिसमें आपने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड किया, फिर क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, है ना। तो वो प्रेसिपिटेट उसी सॉल्यूशन के साथ आपको हीट करना है, एट हायर टेम्परेचर यू हैव टू हीट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। सो इट रिजल्ट्स इन क्लीनर एंड बिगर पार्टिकल्स। ऐसी प्रोसेस क्यों करनी है, सो दैट वॉट एवर क्रिस्टल्स आर फॉर्म दे विल रीच टू द रिक्वायर्ड साइज, है ना। जितने पार्टिकल बन चुके हैं, हीट करने से क्या होगा, वो एक दूसरे के पास ज़्यादा आएंगे, दे विल हैव गुड टाइप ऑफ बॉन्डिंग ड्यू टू हीटिंग एंड द रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज इज रीच। द फिजिको-केमिकल प्रोसेस अंडरलाइंग डाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसवाल्ड राइपनिंग। प्लीज़ रिमेंबर दिस वर्ड। डाइजेशन को और क्या कहते हैं, ऑसवाल्ड राइपनिंग। राइपन जैसे फ्रूट राइप होता है ना, मतलब क्या होता है, जो रॉ मैंगो होता है वो स्वीट मैंगो में कन्वर्ट होता है ना। ग्रीन मैंगो इज़ कन्वर्टेड इनटू येलो मैंगो, तो उसे क्या कहते हैं, राइपनिंग, फल का पिकना, है ना। तो उसी तरह ये जो हमारी प्रेसिपिटेट है दैट इज़ ऑल्सो राइपन एंड दिस इज कॉल्ड एज ओसवाल्ड राइपनिंग। So what happens actually in this case,
This increase the average particle size. This is also called as aging of that particular precipitate. एजिंग मतलब उसकी उम्र होना, है ना. तो हम लोग जो है ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल हम उसी वाटर के साथ या उसी सॉल्यूशन के साथ वाटर बाथ में हीट करते. ओके, सो दिस इज carried out for 1 hour or 1.5 hour so that the required particle size is reached. Okay, so this type of process of digestion or Oswald ripening or aging helps in what? Very first, uniform particle size. जैसे जैसे आप उस प्रेसिपिटेट को 1 घंटे के लिए हीट करते हो विद द सेम सॉल्यूशन, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज. सारे पार्टिकल एक साइज के बन जाते हैं. द सेकंड इज परफेक्ट क्रिस्टल्स. जो भी पार्टिकल बन रहे दे हैव परफेक्ट क्रिस्टल टाइप. एंड द थर्ड वन, इट रिड्यूस को एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन. दैट ओनली वी वांट, दैट देयर शुड बी नो impurities such as co-precipitation and post precipitation. Okay, so these are the role and importance of digestion. So what are the further role of filtration, washing, etc., that we will discuss in our next lecture. Till that, you take care and stay safe. Thank you.